Hello everyone. In this class, we will discuss BCD adder. A BCD adder can add two BCD numbers. A 4-bit BCD codes we know used to represent 0 to 9 digits. For every 0 to 9, we will represent its equivalent in BCD in 4 bits. A BCD header also having a correction circuitry. For correction, if a BCD sum exceeding 9, it adds 6 with that sum. Whether a BCD number exceeds 9 or it generates a carry, then we need a correction circuitry. For that, it will add 6 into the sum. By adding 6 to the sum, it makes an invalid digit a valid. This is the block diagram. Here 4-bit BCD numbers, two different BCD numbers are there, A3, A2, A1, A0 and B3, B2, B1, B0. Initially there is a input carry C in, it should be 0 and the output is S3, S2, S1, S0. This is the output for combinational circuit which we are going to add in the BCD adder. Why we need this correction circuitry? As we know, from 0 to 9, each number will be represented by 4-bit BCD. But after 9, what happens when the number exceeds 9? For example, when there is a number 10, then 10 will be represented by 8-bit BCD number. In 10, 1 will be represented by 4-bit BCD number and 0 will also represented by 4 BCD number. Let me show you. We know that when it is 1009, then no issue. Then when the sum is 9, at that time there is no issue. This 4-bit representation is correct. But what happened when there is 10? 10 means we have to represent 10 in BCD. We can't represent 10 like 1010. In binary number, we write 10 as 1010. But in BCD number, after 10, and when 10 comes in the table, we will represent this 2-digit number into 8-bit BCD number. Each digit of this number will be represented by 4-bit BCD number. For example, this 1 will be written as 0001 and this 0 will be written as 0000. So this is the correct BCD number. This 1010 will be wrong. Okay, so this 1010 is invalid in BCD number. That's why we need a correction circuitry in BCD adder. That's why we have included this correction circuitry in our BCD adder. We are taking inputs S3, S2, S1 and S0. What are these
what are these inputs? These are some output generated from the BCD addition. ओके ये क्या है, जो हम BCD एडिशन करा रहे हैं 4 बिट A3 A एंड B का, उनके बाद जो सम जनरेट हो रहा है वो सम, उनका आउटपुट अगर ग्रेटर देन सम आउटपुट, इफ सम आउटपुट इज ग्रेटर देन 9 और a carry is generated, in that case only we need a correction circuitry. इसलिए हमने यहाँ पे जो इनपुट्स लिए हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, ये क्या हैं, S3 S2 S1 S0 हैं, जो कि सम आउटपुट हैं हमारे BCD एडर के। अब क्योंकि हम किस चीज़ के लिए कंसर्न है यहाँ पे, हम कंसर्न इस चीज़ के लिए हैं, वी हैव टू चेक व्हेन output is exceeding 9. So output of some output is exceeding 9. So when the sum is exceeding 9, our output y will generate 1. Until 9 it should be 0. So when we know that S3 S2 S1 S0 4 bits are there, 4 variables are there, it means it will generate total 16 combination. यहाँ पे ऐसे 16 कॉम्बिनेशन होंगे, और 16 कॉम्बिनेशन हम जब बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्टार्ट होते हैं 0 0 0 0 से और एंड होते हैं 1 1 1 1 पे, राइट। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो BCD नंबर है वो वैलिड कहाँ तक है, 9 तक वैलिड है, और 9 की वैल्यू होती है 1001। ठीक है, ये हमारा हो गया 0 0 0 0, तो हमने इसमें आउटपुट 0 रखा। नेक्स्ट था 0 0 0 1, तो इस पर भी हमने आउटपुट, जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसका आउटपुट हमने क्या रखा, 0 रखा। इसी तरह से अप टू 9 हम इसको 0 रखेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 हमारा 9 होता है, तो यहाँ पे भी इस आउटपुट y की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी। अब हमारा जो a और b का जो सम है, मान लो 10 हो गया, 1 0 1 10 हो गया, तो हम उसको 1 0 1 0 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हमारा एक इनवैलिड नंबर होता है। इसलिए हम इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के आउटपुट पे हम क्या अप्लाई करेंगे, टेबल में 1। ठीक है, तो ये जो 9 के बाद जितने भी कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं ये सारे ही इनवैलिड हैं, इनवैलिड BCD नंबर है, BCD नंबर ऐसा होता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबके लिए 1 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने 10 का बताया उसी तरह से 11 के लिए भी है। 11 को अगर हमें BCD में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको 1 0 1 1 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बाइनरी की तरह। हम कैसे करेंगे, हम 4 बिट के BCD नंबर से हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 11 है तो हम फर्स्ट 1 को हम लिखेंगे 0 0 0 1, और जो नेक्स्ट 1 है उसके लिए भी हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 1। तो इस तरह से टोटल 8 बिट्स हमको लेनी होगी। 4 बिट से हम उस केस में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा आउटपुट इन केसेस में हाई हो गया है। ठीक है, ऐसे 6 ऐसे केस जनरेट होंगे जहाँ पे हमारा y का आउटपुट हाई होगा। अब हमें जब इसका एक्सप्रेशन निकालना है, इसको हमें एक सर्किट में अप्लाई करना है, हमें इसको हमारे लॉजिक में ऐड करना है। ठीक है, तो लॉजिक में ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन। फॉर द एक्सप्रेशन वी विल सिंप्लीफाई इन के मैप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे के मैप बना लिया। यहाँ पे हमने ले लिया है S3 S2, और यहाँ पे मैंने ले लिया S2 S1, सॉरी S1 S0। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया S3 S2 और S1 S0। इस साइड है S3, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने एक बार और लिख लिया। ठीक है, तो हमें इतनी सर्किट के लिए बनाना था। तो पहला वाला कब हाई हो रहा है, 1 0 1 0 में। ठीक है, तो यहाँ भी 1 0 है और यहाँ भी 1 0 है,
तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इस मिनटर्म को हमने नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट हाई हो रहा है 1011 पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने S3 S2 पे 10 लिया और 11 यहाँ से लिया, तो ये भी हमारा हाई हो गया। नेक्स्ट है 1100, तो 11 यहाँ है और 00 यहाँ है, तो ये वाला 1 आ गया मेरा। नेक्स्ट 1101, ठीक है, तो 11 यहाँ और 01 यहाँ पुट कर दिया। तो इसी तरह से हमने के मैप में सारे जहाँ जहाँ हमारा आउटपुट हाई हो रहा था वो पूरे कॉम्बिनेशन को हमने के मैप में प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड फॉर्म हो गया और एक ऐसे में कॉर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में S3 कॉमन है, तो हमने लिखा S3, और इन दोनों रो में क्या कॉमन है, इन दोनों रो में S1 कॉमन है, तो इस वाले कॉर्ड की वैल्यू आ गई मेरी S3 S1। उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल में जो कॉर्ड है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे दोनों इस रो में क्या है 1 1 है, मतलब S3 S2 है, और ये जितने भी कॉलम को टच कर रहा है उन सारे कॉलम में S1 और S0 की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, S3 S2 प्लस S3 S1। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा निकल के आया है y, ये किस केस में जनरेट होगा, ये होगा जब हमारा सम ग्रेटर देन 9 हो या कैरी जनरेट हो, तो उस केस में हमें एक करेक्शन करना है। उस करेक्शन के लिए हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाई है, ठीक है। तो एल्गोरिथम हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इफ़ सम इज़ अप टू 9 यूज़ द रेगुलर एडर, ठीक है। अगर सम 9 तक है तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई करेक्शन नहीं करना, हम रेगुलर एडर का ही यूज़ करेंगे। बट इफ़ सम exceeds 9, if sum is greater than 9, in that case we have to use the regular adder and add 6 to the result, ठीक है। इस केस में इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि करेक्ट कैसे होगा। यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए, ठीक है, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ठीक है। 2 BCD नंबर लिए 0 1 0 1 एंड 0 1 1 0। वी हैव टू ऐड दिस 2। जब ऐड किया तो हमें क्या मिला 1 0 1 1, ठीक है। तो 9 से एक्सीड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ आ इनवैलिड BCD नंबर, इनवैलिड हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करेक्शन करना होगा। तो करेक्शन हम कैसे करेंगे, करेक्शन करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम 6 को ऐड कर रहे हैं। तो 6 को अगर हम BCD फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है 0 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारा सम आया था, जो सम जनरेट हुआ था इनवैलिड सम, उसमें हमने 6 को ऐड करा दिया। जब हमने इसमें 6 को ऐड कराया तो हमारा नंबर क्या बन गया 1 1 + 1 0, कैरी जनरेट हुआ तो 1 + 1 फिर से 0, फिर कैरी जनरेट हुआ तो 1 + 1 0, और ये जाके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा नंबर जो था उसको हमने करेक्ट कर लिया है। ये कैसे हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो 1 0 1 1 था ये किसका रिप्रेजेंटेशन, ये किसके लिए होता है, किसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 11 का, ठीक है। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं, हम 11 को लिखते हैं 0 0 0 1, ठीक है, इस 1 के लिए। नेक्स्ट 1 के लिए भी हम लिखते हैं 0 0 0 1, ठीक है। तो जब हमने 6 ऐड किया तो हमारा आउटपुट आ गया, करेक्ट आउटपुट आ गया। तो इसलिए हम इसमें इस तरह का एक करेक्शन कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। सर्किट फॉर द BCD एडर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल जो हमने पैरेलल एडर यूज़ किया था, बाइनरी एडर हमने जो पढ़ा था 4 बिट का,
हम वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 बिट नंबर को ऐड करा रहे हैं, हम अगर BCD एडिशन करा रहे हैं तो हम वही एडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहला वाला एडर यूज़ किया। ठीक है, ये वाला जो पहला वाला एडर है, ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नंबर है A और ये सेकंड नंबर है B। ठीक है, दीज आर 2 डिफरेंट BCD नंबर्स। हमने इनको ऐड किया और इसका आउटपुट मुझे क्या मिला, S3 S2 S1 S0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 2 एडर यूज़ किए हैं। पहला एडर है 2 BCD नंबर को ऐड करने के लिए, राइट, जिसमें हमने A और B को ऐड करा और S3 S2 S1 S0 जनरेट हुए। दूसरा एडर हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, ये है करेक्शन के लिए, क्योंकि हमें करेक्शन करने के टाइम पे हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे 6 ऐड करना है, हमें 0 1 1 0 ऐड करना है। तो इसलिए हमने दूसरा पैरेलल एडर भी यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरे एडर में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एडर में जो पहला इनपुट जा रहा है वो क्या है, सम आउटपुट जो प्रीवियस एडर से जनरेटेड जो सम आउटपुट था, उसको हमने दूसरे एडर के A इनपुट में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें S3 S2 S1 और S0 अप्लाई किया और दूसरी तरफ अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, 1 0 1 1 0, तो हमें 6 अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना था, हमने क्या डिज़ाइन किया था, हमने डिज़ाइन किया था हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो उस कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक्सप्रेशन था y इक्वल्स टू S3 S2 प्लस S3 S1। तो हमने यहाँ पे क्या किया, S3 S2 के लिए एक एंड गेट ले लिया। ठीक है, ये वाला जो एंड गेट है इसमें हमने क्या क्या अप्लाई किया, S3 S2। दूसरा एंड गेट हम लेंगे S3 एंड S1 के लिए। ठीक है, तो दूसरे एंड गेट में मैंने क्या क्या अप्लाई किया, S3 अप्लाई किया और यहाँ से देखिए S1 अप्लाई किया, S3 और S1 अप्लाई किया। ठीक है, ये दोनों मैंने अप्लाई किए, तो इनको मुझे किस में अप्लाई करना पड़ेगा, एक और गेट में। तो हमने एक और गेट ले लिया, बट इस और गेट में हमने इस कैरी को भी ऐड कर लिया। कैरी को भी हमने क्यों ऐड किया, कैरी को भी हमने इसलिए ऐड किया कि जब भी हमारा आउटपुट 9 से ज़्यादा हो रहा है या हमारा कैरी हाई आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें करेक्शन अप्लाई करना है। तो इसलिए मैंने इस करेक्शन सर्किट के आउटपुट में इस कैरी को भी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो जब भी इनमें से कोई भी चीज़ हाई होगी, कोई सा भी एक इनपुट हाई होगा, तो उस केस में इस आउटपुट कैरी का, इस ऑर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। क्योंकि ऑर गेट में इफ़ एनी वन इनपुट इज हाई, if at least output of OR gate will be high if only one or both the inputs are high। तो इस केस में अगर कैरी जनरेट हो जाए या हमारा सम एक्सीड कर जाए, तो हमारा जो y है, आउटपुट कैरी है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने क्या करके रखा है, जो हमने दूसरा एडर यूज़ किया है उसमें एक साइड पे तो हमने सम आउटपुट लिया है प्रीवियस एडर का, और दूसरे साइड में हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये 4 बिट है, B3 B2 B1 B0 टाइप से इसमें, तो हमने इसमें 0 अप्लाई किया है पहले वाले में और लास्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को हमने ग्राउंड से अप्लाई कर दिया है, 0 कर दिया है, और जो बीच की 2 डिजिट्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं आपके इस ऑर गेट के आउटपुट से। इफ़ इन केस इस ऑर गेट का आउटपुट हाई हो गया, तो ये हाई आउटपुट कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इसमें और इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट में तो हमने 0 अप्लाई किया है, बीच की 2 जो बिट होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। तो ये किस तरह का दिख रहा है, करेक्शन में हमें क्या मिल गया, 0 1 1 0। तो ये क्या है, ये 6 है। ठीक है, तो इसके साथ
जो पुराना सम जनरेट हुआ था उसका आउटपुट वो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा S3 S2 S1 S0।